Hi guys, well, I hope that you have read the story, A Letter to God, right, by Jill Fuentes. It was interesting to note that some of you actually got the author's name wrong in the test, and that was pretty impressive, right? कि author का नाम भी गलत अगर हो जाए आपका तो मतलब आप लोगों ने अभी तक जो है टेक्स्ट बुक के दर्शन नहीं किए हैं, and that's really sad. Okay, that is something you have to work on. Anyways, there are like two very small poems in this like chapter, and both the poems are by Robert Frost. Now, Frost does not write such small poems all the time, but there is one more thing that the length of these poems is very deceptive. In poems का जो length है वो काफी ज़्यादा deceptive है because they are really both of these poems have really condensed meaning in them. अगर सिर्फ इस poem को first poem basically Dust of Snow, it describes a very simple incident. Okay, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. कितना सिंपल है. एक सिंपल इंसिडेंट है कि एक कौवा जो है उस कौवा जो होता है वो जो है पोइट के ऊपर जो है डस्ट ऑफ स्नो गिराता है एक हेमलॉक ट्री से, और इसकी वजह से जो है पोइट के हार्ट में जो कुछ भी चल रहा है, पोइट के मन में जो कुछ भी विचार चल रहा है, डीप थॉट, वो जो है बदल जाता है, और इसकी वजह से जो है उस दिन का कुछ हिस्सा जो है एटलीस्ट बच जाता है जिस दिन को जो है पोइट जो है कोस रहा था. क्या खास है इसमें? Well, it happens, right? Many days you might feel, like quite you can say depressed on a particular day. Not depressed exactly, but you may feel pensive, sad, right, tense, all those sorts of like negative emotions or feelings which could be common. ओके तो इस तरह के सिनेरियोस तो आते रहते हैं लाइफ में. तो ऐसा ही एक इंसिडेंट जो है वो पोइट के साथ होता है, राइट? लेकिन यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखो. अ क्रो. Now see, like a crow is, you don't see crow usually appearing in a poem or story, and particularly with a good intention or anything. Crow is also supposed to be a harbinger of bad luck. Okay, crow as a harbinger of, or basically you can say that messenger, bad luck. Basically, you can call it bad omen. Okay. तो ये तुम्हारा हो गया क्रो. वो क्रो बैठा कहाँ है? दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. हेमलॉक ट्री. वेल, हेमलॉक इज supposed to be poisonous. Now how interesting is that? तो बेसिकली एक बहुत ही जो एक बैड ओमेन का जो हार्बिंगर है क्रो, वो जो है एक ऐसे ट्री पर बैठा हुआ है विच इज सपोज टू बी पॉइजनस, बिलीव टू बी पॉइजनस, और वहां से वो पॉइंट पर्सोना के ऊपर जो है गिराता है अ डस्ट ऑफ स्नो, राइट? और उसकी वजह से क्या होता है, उसके हार्ट में जो है चेंज आता है, जो कुछ भी वो सोच रहा है उसमें चेंज आता है, एंड उसकी वजह से जो है उसका वो दिन जो है वो थोड़ा बच जाता है. But see, like this is not about just this is not just about you can say a crow, hemlock, and snow. This is about like what nature can do for you. We can be so obsessed in our lives. Okay, अगर इस poem के बारे में कहा जाए तो the right thing would be to say, right thing to say would be that like we can be so obsessed with okay, we can be so obsessed with the problems of our lives that we stop enjoying it. Okay, हम जो है लाइफ को एंजॉय करना छोड़ देते हैं, राइट? In such pensive times, you can say even a small bit of distraction can prove
to be very helpful, in fact. And nature has an unending possibility for such distractions. ओके, तो ये एक खास चीज है। डस्ट ऑफ स्नो जो है ऐसा ऐसा बहुत सारा जो है यूजफुल टूल नेचर के पास ऑलरेडी मौजूद है, समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज एक्सेस। ओके, और जरूरी नहीं कि वो हेमलॉक ट्री से आ रहा है, और जरूरी नहीं कि आई मीन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो कौवा इसे गिरा रहा है। इनफैक्ट अगर हेमलॉक ट्री से भी आ रहा है और कौवा भी अगर उसे गिरा रहा है, इसके बावजूद भी नेचर हैज we can say that nature has great capacity to uplift our spirit and make us experience its bountiful, even the most moments of nature's agents. You guess I wouldn't say ominous, but you can say derided. Okay, so even the most derided of nature's agents, like a crow and hemlock tree, can enhance the poet persona's heart and make him enjoy his day, which he would have otherwise rued. You can also say lamented. Okay, so basically like that is the key idea that we get here. Okay, कि किस तरीके से जो है हमारा जो डे टू डे लाइफ है, इट कैन प्रूव टू बी वेरी ऑप्रेसिव एंड एवरीथिंग, राइट? एंड इन दिस केस वी हैव टू लुक एट नेचर बिकॉज नेचर हैज a great capacity to uplift our spirit and make us experience its bountiful. Bountiful basically means the plentiful gifts that nature possesses. ओके, और इवन द मोस्ट डिराइडेड ऑफ नेचर्स एजेंट, लाइक हम लोग जो है हमेशा कौवा हो या हेमलॉक ट्री हो, इसको बहुत अच्छी नज़र से तो नहीं देखते हैं। जब भी लाइक चाहे लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में फिगरेटिव यूज की बात अगर हो, तो कौवा हो या हेमलॉक ट्री हो, ये बेचारे नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ आते हैं, लेकिन वो भी जो है यहाँ पर पोएट पर्सोना के हार्ट को चेंज कर देते हैं और बेचारे को वो दिन एंजॉय, कुछ ही हिस्सा भले उस दिन का जो है वो उसका बचा देते हैं, जो कि वो अदरवाइज जो है बेचारा अफसोस ही करता उसके लिए वो, राइट? तो ये आपको ये हमें बताता है कि यू नो लाइक व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू यू नो लाइक गेट आउट ऑफ आवर मटेरियल preoccupations, right? Importance of getting out of our material preoccupations, enjoying, experiencing nature. Okay, as for the structure of the poem, it's very simple actually, right? काफी simple है. There is you know like constant run on throughout the poem. मतलब कि run on का मतलब हो गया कि lines जो है वो सीधे जो है एक लाइन अगले लाइन में जो है घुसती हुई चली जा रही है, except for this you know like full stop, बीच में कहीं कोई punctuation नहीं है, तो it creates you know like very rapid flow. Interestingly, this rapid flow is you know like I mean it also suggests you know like how quickly the change takes place, the change of mood takes place for the poet persona, तो उसको भी ये जो है indicate करता है. So well, that is it for this poem by Robert Frost, and now we will be looking at another of his poem, Fire and Ice. This is another interesting poem. और एक्चुअली शायद इसके बारे में जो है एक ऐसा कहा भी जाता है कि एक बार शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट से जो है किसी ने पूछा था कि दुनिया जो है वो या तो
काफ़ी ज़्यादा जो है हीट की वजह से ख़त्म हो सकती है, या फिर दुनिया जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड में ख़त्म हो सकती है। और ऐसा मैंने बस कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था शायद, कि फ्रॉस्ट ने जो है उसी के शायद रिस्पॉन्स में ये पोएम लिखी थी। सो वेल, लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट दिस पोएम, व्हिच इज अनदर वेरी सिंपल पोएम, okay, but very, I mean, like heavily impregnated with ideas. Some say the world will end in fire, some say in ice. So okay, two lines open with options, right? दोनों लाइन जो ओपन ऑप्शन के साथ, some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ कहते हैं कि दुनिया जो है आग में खत्म होगी, और कुछ कहते हैं बर्फ में. Of course, like from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Now, what is the poet trying to say here? क्या desire बुरी चीज है? क्योंकि पोइट क्या करता है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मतलब कि इच्छाओं का जो टेस्ट मैंने लिया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ खड़ा हूं जो कि फायर को सपोर्ट करते हैं, कि फायर से ही दुनिया खत्म होगी. नाउ यू सी, द पोइट इज टॉकिंग ऑफ डिजायर हियर, बट दिस इज नॉट डिजायर इन इट्स मोस्ट न्यूट्रल form. Probably what Frost is talking about is this, like insatiable desire we have. Okay, कभी भी संतुष्ट ना होने वाली, कभी खत्म ना होने वाली जो desires हमारे अंदर है. I mean, to put it more, like exactly, it will be like unending greed that we possess. Okay, तो ये greed जो है, ये greed क्या करता है? अगर एक सिंपल, अगर मान लो कि हम एक कनेक्शन तैयार करें, तो बेसिकली लाइक अनएंडिंग डिजायर, it will lead to what? Unending desire का मतलब हो गया desire to possess everything, and it leads to conflict with others, envy, enmity, desire to destroy, possibility of getting destroyed in the process, right? इस टाइप का चेन, इस टाइप के चेन ऑफ इवेंट की जो है शायद पोइट यहाँ पर जो है बात कर रहा है, जब वो जो है डिजायर के बारे में जो है अपना ये ओपिनियन रख रहा है. लेकिन पोइट जो है देखो इतना क्लोज माइंडेड नहीं है, इतना नैरो माइंडेड नहीं है. पोइट जो है बहुत ही बड़ा दिल वाला है, इसलिए तो कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना है, राइट, मान लो, जैसे कि हम लोग के यहाँ वो गेम नहीं होता है वो जिसमें कहते हैं वो शायद 3 फुके चानी और समथिंग लाइक दैट, राइट? और आई मीन यू हैव टू बेसिकली ट्राई थ्राइस, राइट? आई मीन पहली बार का रिजल्ट, पहली बार का रिजल्ट चलो अच्छा नहीं, ये कंक्लूसिव नहीं रहा, एक काम करें दोबारा करते हैं, और फिर नहीं, तीसरी बार जो होगा वो फाइनल होगा. तो खैर चलो, पोइट जो है वो तीसरी बार नहीं, वो दूसरी बार की ही बात करता है. ये चलो ठीक है, पहली बार में अगर सबका मन नहीं भरा, पहली बार अगर दुनिया खत्म हुई और सबका जो है मन नहीं भरा उस शो से, अगर इसको 2 बार खत्म होना है, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, दैट्स लाइक अ विश. ओके, ये जो है विशफुल थिंकिंग के बारे में बताता है. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसे 2 बार खत्म होना हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. बट कहता है कि अगर 2 बार खत्म होना है, तो मैं सोचता हूं कि मैं सफिशियंट या काफी जो है नफरत के बारे में भी जानता हूं, और जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस जो है वो भी सही रहेगा. एंड वुड सफाइस इज ऑल्सो ग्रेट, एंड वुड सफाइस काफी रहेगा. सो वेल सी, लाइक फायर इज कंबाइंड विद डिजायर. एक्चुअली जो है फायर काफी रेगुलरली, काफी फ्रीक्वेंटली जो है फायर जो है वो डिजायर के सिंबल के तौर पर भी यूज होता है. और दूसरी तरफ आइस जो है वो हेट्रेड, कोल्डनेस, इन सभी के लिए भी सिंबॉलिक तौर पर काम करता है. तो ये जो सिंबॉलिक रिलेशन है इनके बीच में, वो तो है ही, और वो जो है इस पोएम के टाइटल का बेस भी है, फायर एंड आइस, मतलब डिजायर एंड हेट्रेड. अब हेट्रेड क्या है, अब हेट्रेड कैसे काम करता है? सी, लाइक इट इज, आई मीन when we are talking about human emotions, we are not just always, I mean, we are not always guided by like our sense of self betterment and everything. कई बार जो है हम दूसरों के प्रति हेट्रेड से भी जो है काफी ज्यादा जो है मोटिवेटेड होते हैं,
समझे कि नहीं? और वो हेट्रेड जो है वो इस किस बात से होती है? ओके, someone is doing better than me, no, I hate that person. Someone is actually, like better than me, I hate that person. Someone is, like living a better life than me, someone is actually happier than me, no, I really hate that person, I want to kill that person, I want to destroy that person. समझे कि नहीं आइडिया? That is about hatred, right? Because hatred, it actually, like prevents you enjoying yourself, makes you increasingly miserable, right? अब जितना तुम मान लो दूसरों को देख के जलोगे, उतना तुम अपने आप को एंजॉय नहीं कर सकते हो। जितना तुम खुद को एंजॉय नहीं कर पाओगे, उतना ज्यादा जो है आप जो है मिजरेबल होते जाओगे, है कि नहीं? और जितना ज्यादा आप मिजरेबल होते जाओगे, उतना ज्यादा जो है आपके अंदर और हेट्रेड बढ़ेगा कि भाई मैं इतनी बुरी जिंदगी जी रहा हूँ और ये सब कितना खुश है, जो मेरा मजाक उड़ा रहा है, वगैरह वगैरह। और गुस्सा आएगा आएगा आपके अंदर, और ज्यादा आप जो है मिजरेबल होगे, राइट? एंड सैडली दिस हेट्रेड साइकिल is harbored within many of us. We are not guided by creativity and positivity, but hatred towards others, right? और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि basically like it can also lead to destructive motives. It can give us destructive motives, right? और ये destructive motives जो होंगे वो क्या करेंगे? वो सब कुछ खत्म कर सकते हैं, सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं. So well, that is the key idea of this poem Fire and Ice. You can like check out some questions based on these chapters, looking at like previous papers and everything. And if there is any question that you could not answer based on what we have discussed today, you can always post those questions in the group and we will discuss them together. Okay, anyway, so that's it for this chapter, from literature section. Do look at as for the rhyming scheme and stuff, I don't need to tell you about the rhyming scheme, you must know it by now, right? अगर नहीं समझ पाए तो भाई बता देना, देखेंगे उसको भी हम लोग. Okay, so well, this is it for today's lesson. Hope you have understood both these poems. Okay, bye bye.